قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دوستو صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایک شام فستانیہ اور اس کی ماں خلقدون کی قلعے کی فصیل پہ کھڑی خوشگوار ہوا کا لطف اٹھا رہی تھی۔ اچانک مغرب کی سمت سے سواروں کا ایک دستہ قلعے کا رخ کرتا ہوا دکھائی دیا اور یوسیپیا نے کہا، بیٹی شاید تمہارے ابا جان آ گئے ہیں۔ فستانیہ کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر مغرب کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، نہیں امی جان، وہ ایرج ہے اور ابا جان اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یوسیپیا نے کہا، تمہارے ابا جان کہتے تھے کہ ایرج رخصت پر گھر جا رہا ہے، ممکن ہے کہ اسے کسی صوبے کی گورنری یا کوئی اور بڑا عہدہ مل جائے اور اس محاذ پر واپس نہ آئے، اس لیے تمہیں اس کے ساتھ تلخی یا بے رخی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اسے بلا وجہ چرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن تم اس کی ضرورت محسوس کرو گی۔ اب نیچے چلو، میں اس کے سامنے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہوں۔ فستانیہ نے کہا، امی جان، میں ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہتی جس سے وہ میرے ساتھ غلط امید قائم کر لے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اس کے سامنے صاف گوئی سے کام لوں، اور اگر اس کے دل میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ ابھی سے دور کر دی جائے؟ نہیں بیٹی، تمہیں یہ مسئلہ اپنے باپ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت آنے پر وہ ایرج اور اس کے باپ کو مناسب جواب دے سکیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری شادی کا مسئلہ تمہاری رضامندی سے طے کیا جائے گا۔ عمر کے ساتھ انسان کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، ممکن ہے کہ ایرج کے متعلق تمہاری رائے بدل جائے۔ اب چلو جلدی کرو۔ فستانیہ اپنی ماں کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ تھوڑی دیر بعد یہ دونوں اپنے رہائشی مکان کے ایک کمرے میں ایرج کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، جناب، ایرج آ گیا ہے اور وہ اسی وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آقا اس کے ساتھ تشریف نہیں لائے، اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا حکم ہے؟ یوسیپیا نے جواب دیا، ایرج ہمارے لیے اجنبی نہیں، اسے لے آؤ، لیکن پہلے مشعل لے آؤ۔ نوکر اس کے حکم کی تعمیل کے بعد واپس چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایرج کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیش قیمت لباس پہنے ہوا تھا اور اس کے موٹاپے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ محاذ جنگ پر بھی اس کا وقت انتہائی عیش و آرام میں گزرا ہے۔ فستانیہ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے یوسیپیا سے مخاطب ہو کر کہا، میں رخصت پر گھر جا رہا ہوں، اور اگر فستانیہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ فستانیہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم جتنے دن چاہو یہاں ٹھہر سکتے ہو۔ شکریہ، لیکن فستانیہ کی صورت بتا رہی ہے کہ یہ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ کیوں فستانیہ، میں یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ فستانیہ نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ قلعہ کافی کشادہ ہے اور اگر میں چاہوں تو بھی آپ کو یہاں ٹھہرنے سے منع نہیں کر سکتی۔ ایرج نے کہا، دیکھا چاچی جان، فستانیہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ یوسیپیا نے جواب دیا، فستانیہ تم سے ناراض نہیں، اور اگر تم بچوں کی طرح لڑنے نہ لگ جاؤ تو میں تمہارے کھانے کا انتظام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے قلعے کے محافظ سے کہہ دیا ہے اور میرے لیے اس وقت کسی خاص تکلف کی ضرورت نہیں۔ فستانیہ نے کہا، امی آپ بیٹھیں، کھانے کا انتظام میں کرتی ہوں۔ نہیں فستانیہ، میں تمہارے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایرج نے یہ کہتے ہوئے فستانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ بے بس ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ یوسیپیا کمرے سے نکل گئی تو ایرج نے قدر توقف کے بعد کہا، فستانیہ، میں رخصت پر جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ وہاں مجھے کوئی نیا عہدہ پیش کر دیا جائے اور میں واپس نہ آ سکوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ میرے والد نے تمہارے ابا جان کو ایک پیغام بھیجا تھا، لیکن ابھی تک وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ محاذ جنگ سے رخصت ہوتے وقت میں نے پہلی مرتبہ ان سے کھل کر بات کرنے کی جرأت کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی تھی کہ ابھی میری بیٹی اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کے قابل نہیں ہوئی۔ اب میں ان سے تمہارے ساتھ براہ راست گفتگو کرنے کی اجازت لے کر آیا ہوں، اور تمہیں صبح سے پہلے مجھے کوئی تسلی بخش جواب دینا پڑے گا۔
फस्तानिया ने कहा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे एक रात सोचने के लिए दी, वरना तुम ये भी कह सकते थे कि मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं शादी की रसूमात अदा करने वाले काहिन को अपने साथ ले आया हूँ। एरज ने तलख होकर कहा, मुझे यकीन है कि जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा तो काहिन मेरे साथ होगा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि मैं इतना तवील सफ़र करना पसंद न करूँ और तुम खुद मेरे पास आने पर मजबूर हो जाओ। तुम्हें ये बात हर वक्त जहन में रखनी चाहिए कि तुम्हारी माँ ईसाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। फस्तानिया उठकर खड़ी हो गई, लेकिन एरज ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारी गुफ्तगू अभी ख़त्म नहीं हुई। आज मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उलझन दूर कर देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे तज़ब्ज़ुब की वजह वो मुफलिस अरब था, लेकिन अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फस्तानिया के चेहरे पर अचानक जर्दी छा गई और एरज उस सांप की तरह उसकी तरफ देख रहा था जो अपने शिकार को डसने के बाद उसके गिरने का इंतज़ार कर रहा हो। उसने कहा, तुम्हारा आसिम अब तुम्हारे पास नहीं आएगा। मिस्र से इत्तला आई है कि उसे सख्त बुखार की हालत में इलाज के लिए बाबलून भेजा गया था, लेकिन उसके बाद वो कहीं रूपोश हो चुका है। एक रूमी ग़ुलाम तैयबा से उसके साथ कश्ती पर सवार हुआ था और वो भी लापता है। उस ग़ुलाम की मिस्री बीवी और उसका बाप बाबलून में रहते थे और वो भी कहीं रूपोश हो चुके हैं। बाबलून के हाकिम का ख्याल है कि उन लोगों ने आसिम को कत्ल करके दरिया नील में फेंक दिया होगा, वरना यह भी मुमकिन है कि वो जंग की कुल्फतों से तंग आ गया हो और सेहतयाब होने के बाद छुपता छुपाता अपने वतन पहुंच गया हो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो अपने अब्बा जान से तस्दीक कर लेना, वो 2-4 दिन तक यहाँ आ जाएंगे। फस्तानिया कुछ देर सकते के आलम में खड़ी रही, फिर उसके भींचे हुए होंठ लरजने लगे और पथराई हुई आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। एरज ने उसका हाथ खींचकर अपने करीब बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो एक झटके के साथ हाथ छोड़ाकर चंद कदम पीछे हट गई। एरज ने कहा, फस्तानिया, तुम्हारे आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे शुबहात गलत न थे, लेकिन अब भी अगर तुम अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो तो मैं तुम्हारे माजी की हर लफ्ज़िश फरामोश करने के लिए तैयार हूँ। फस्तानिया की रगों का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे में आ गया और उसने कहा, मुझसे कोई लफ्ज़िश नहीं हुई और मुझे तुम्हारे रहम की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम न था कि तुम एक शरीफ और बहादुर आदमी के साथ इस कदर नफ़रत कर सकते हो। तुम शायद अपने दिल में ये ख्याल लेकर आए थे कि आसिम के रूपोश होने की इत्तला सुनकर मैं तुमसे ये कहूँगी कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह खाली हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी ये खुशी बेमाने है। अगर वो ज़िंदा है तो तुम मुझे उसका इंतज़ार करने से नहीं रोक सकते, और अगर वो मर चुका है तो तुम मेरे दिल से उसकी याद नहीं भुला सकते। एरज, अगर तुम्हें अपनी बरतरी का गुरूर है तो सुनो, अगर आसमान के सितारे तुम्हारे पाँव छूने के लिए ज़मीन पर उतर आएँ तो मेरी निगाहों में तुम आसिम नहीं बन सकते। एरज ने कहा, मुझे मालूम न था कि एक वहशी अरब की मौत की खबर सुनकर तुम अपने होश व हवास खो बैठोगी। उसने जवाब दिया, मैं जिन लोगों को जानती हूँ वो इन सबसे ज़्यादा बहादुर, नेक और रहमदिल था, और अगर उसे देखा जाना और परस्तिश के काबिल समझना एक लग़ज़िश थी तो मैं मरते दम तक अपनी इस लग़ज़िश पर फ़ख्र करूँगी। एरज ने ज़ख्म खुर्दा होकर कहा, फस्तानिया, मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए नहीं आया था। मैं जानता हूँ कि तुम एक एहसान शनास लड़की हो और तुम्हारे दिल में एक ऐसे शख्स के लिए एहसान मंदी के जज्बात का बेदार होना एक कुदरती बात है जिसने मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद की थी। तुम्हारी वजह से मैं भी अपना उसे मोहसिन समझता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि एक अरब हमारे दरमियान खड़ा हो जाए। मैंने अगर तुम्हारी दिल आज़ारी की है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम बारहा उसका नाम लेकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर चुकी हो, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है जिससे तुम्हारी गैरत को ठेस पहुंची हो तो मैं सिद्क दिल से माफ़ी का तलबगार हूँ। फस्तानिया, आओ मेरे पास बैठ जाओ। मैं आइंदा कभी तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें आसिम को भूल जाना चाहिए। एरज उठकर आगे बढ़ा, लेकिन फस्तानिया भागकर बराबर के कमरे में चली गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर मुंह के बल गिर पड़ी। एरज ने दरवाजे को धक्के देने के बाद कहा, फस्तानिया, दरवाज़ा खोलो। फस्तानिया, पागल न बनो। यूसुफिया कमरे में दाखिल हुई और एरज परेशान होकर पीछे हट गया। यूसुफिया ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। एरज ने जवाब दिया, मैं उसे एक बुरी खबर सुनाने की गलती कर चुका हूँ।
मुझे मालूम न था कि वो मुझसे इस कदर खफा हो जाएगी। कैसी खबर? यूसिपिया ने बदहवास होकर सवाल किया। एरज ने जवाब दिया, मिस्र से इत्तला आई है कि आसिम लापता हो चुका है। यूसिपिया के पूछने पर एरज ने इस इत्तला की तफसीलात बयान कर दी और वो निढाल सी होकर कुर्सी पर बैठ गई। एरज ने कहा, मैं अपने साथियों के पास जा रहा हूँ। अगर मुझे वहाँ देर लग जाए तो आप खाने के लिए मेरा इंतज़ार न करें। यूसिपिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर जल्दी से बाहर निकल गया। यूसिपिया कुछ देर बेहिसो हरकत बैठी रही, फिर वो उठकर आगे बढ़ी और बराबर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने के बाद फस्तानिया को आवाज़ देने लगी। फस्तानिया, दरवाज़ा खोलो। फस्तानिया, फस्तानिया। कुछ देर उसे अंदर से किसी जवाब की बजाय दबी दबी सिसकियाँ सुनाई देती रही। फिर फस्तानिया ने दरवाज़ा खोल दिया और रोती हुई अपनी माँ से लिपट गई। माँ ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, बेटी, मैं कई दिन से ये महसूस कर रही थी कि मिस्र से कोई बुरी खबर आने वाली है। अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। वह बोली, अम्मी जान, आसिम का खून मेरी गर्दन पर है। मैंने ही उसे मैदान जंग का रास्ता दिखाया था। अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं बेटी। कम अज़ कम एरज के सामने तुम्हें हौसले से काम लेना चाहिए। फस्तानिया ने जवाब दिया, आज एरज की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुस्कुराना मेरे बस की बात नहीं। इस दुनिया में मेरे सिवा आसिम के लिए आंसू बहाने वाला कौन है? यूसिपिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी, अगर वो मर चुका है तो तुम्हारे आंसू उसे वापस नहीं ला सकते। अम्मी जान, मेरा दिल गवाही देता है कि वो जिंदा है, उसे जिंदा रहना चाहिए। बेटी, खुदा करे उसकी मौत की खबर गलत हो। अम्मी जान, सच कहिए, अगर वो जिंदा हुआ और यहाँ पहुँच जाए तो आप अपने दिल पर एक बोझ महसूस नहीं करेंगी। मैं ये महसूस करूँगी कि कुदरत ने उसे मेरी बेटी के आंसू पोंछने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ फस्तानिया, और एक माँ की इससे बड़ी ख्वाहिश और क्या हो सकती है कि दुनिया की तमाम नेमतें और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसकी बेटी के कदमों में ढेर कर दी जाएं। अम्मी, एरज ये महसूस करता है कि उसके रास्ते से पहाड़ हट गया है। वो आज बहुत खुश था, लेकिन आप मेरे साथ वादा करें कि आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगी। ऐसे संगदिल इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने की बजाय मेरे लिए एक राहिबा बन जाना ज़्यादा आसान होगा। वो आपका मेहमान है, लेकिन मेरे पास उसकी ज़ियाफ़त के लिए आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। उसने कई बार मुझको ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि ईरान का कोई ख़ानदान उसे नाराज़ करने की जुर्रत नहीं कर सकता, और उसके नज़दीक मेरी या मेरे वालिदैन की पसंद या नापसंद बेमाने हैं। अगर मेरे अब्बा जान उसके सामने इस कदर बेबस हैं तो मेरा मर जाना बेहतर है। तुम्हारे अब्बा जान एरज के ख़ानदान से बिगाड़ना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई मरऊब कर सकता है। अगर एरज तुम्हें नापसंद है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उसके साथ शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकती। आपको मालूम है कि मुझे मरऊब करने के लिए उसका आखिरी हरबा क्या था? वो ये कहना चाहता था कि तुम एक ईसाई माँ की बेटी हो, इसलिए मैं जब चाहूँ अपनी लौंडी बना सकता हूँ। यूसिपिया ने कहा, मुझे ये उम्मीद न थी कि वो इस हद तक कमीनगी पर उतर आएगा, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर ईसाइयत के साथ हमारा रिश्ता तुम्हारे अब्बा जान को कोई नुकसान पहुंचा सकता तो शहनशाह ईरान के तमाम सरदारों को नज़रअंदाज करके कुस्तुनतुनिया फतह करने की मुहिम उनके सुपुर्द न करता। शहनशाह के दरबार में तुम्हारे अब्बा जान के हासिदों से ये बात पोशीदा नहीं कि मैं थियोडोसिस की बेटी हूँ, लेकिन जब तक शहनशाह को हमारी खिदमत की ज़रूरत है, कोई हमारा बाल बेका नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं आता कि एरज हमारी बुराई सोच सकता है। मुमकिन है कि उसने किसी बात से चिढ़कर तुम्हें परेशान करने की कोशिश की हो। बहरहाल अब वह रुखसत पर जा रहा है, शायद वहीं से उसे कोई ओहदा मिल जाए, इसलिए तुम्हें गुस्से या नफ़रत की इजहार की ज़रूरत नहीं। मुमकिन है कि वह घर जाकर तुम्हारा ख्याल ही छोड़ दे और हमें उसके ख़ानदान के साथ बिगाड़ने की ज़रूरत ही पेश न आए। माँ और बेटी देर तक बातें करती रही। नौकर खाना तैयार कर चुके थे, लेकिन एरज अभी तक गैर हाजिर था। यूसिपिया ने कहा, अब बहुत देर हो गई, मैं नौकर को भेजकर उसे बुलाती हूँ। फस्तानिया ने उठकर कहा, अम्मी, मुझे भूख नहीं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। बेटी, भूख तो मुझे भी नहीं, लेकिन वो बुरा मानेगा। अम्मी, अगर आपको उसकी नाराज़गी का इस कदर खौफ है तो आप उसे कह दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं,
फस्तानिया ये कहकर बराबर के कमरे में चली गई। यूसिपिया चंद सानिये परेशानी की हालत में खड़ी रही। फिर उसने एक नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, तुम एरज को बुला लाओ। नौकर बाहर चला गया और यूसिपिया दरवाजे में खड़ी होकर सेहन की तरफ झांकने लगी। थोड़ी देर बाद नौकर वापस आया तो उसके साथ एरज के बजाय किले का मुहाफिज था। उसने झुककर यूसिपिया को सलाम किया और कहा, जनाब वो शहर की तरफ निकल गया है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। यूसिपिया ने परेशान होकर कहा। किले के मुहाफिज ने कहा, उसे रोकना मेरे बस की बात न थी, उसके साथी भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार न थे, इसलिए मेरी आखिरी कोशिश यही थी कि वह किले के अंदर कोई बदमज़गी पैदा न करे। फस्तानिया कमरे से बाहर निकली और उसने कहा, क्या हुआ अम्मी जान? कुछ नहीं बेटी, एरज शराब पीकर शहर की तरफ निकल गया है। फस्तानिया ने किले के मुहाफिज की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम इस शहर के हाकिम हो? मुझे मालूम है, लेकिन एरज जैसे लोगों पर मेरा हुक्म नहीं चलता। उसके साथ 11 मुसल्लह आदमी हैं और तुमने इस शहर के बेबस इंसानों को उन 11 भेड़ियों के रहम करम पर छोड़ दिया है। तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? जनाब मेरे पास 150 आदमी हैं, लेकिन मैं एरज के खिलाफ किसी कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर सकता। फस्तानिया ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम अपने सिपाही लेकर उनका पीछा करो। अगर सुबह मुझे ये मालूम हुआ कि रात के वक्त इस शहर की किसी बेबस लड़की की चीखें सुनी गई हैं तो तुम इस किले के मुहाफिज नहीं होगे। जनाब अगर वो मज़ाहमत करें तो उन्हें बांध कर यहाँ ले आओ। मुझे आपके हुक्म की तामील से इनकार नहीं, लेकिन आपको शायद नताइज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फस्तानिया ने चिल्लाकर कहा, तुम वक्त ज़ाय कर रहे हो, जाओ। किले का मुहाफिज यूसिपिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। जनाब आपका भी यही हुक्म है क्या? यूसिपिया ने जवाब दिया, सीन की बेटी का हुक्म सुनने के बाद तुम्हें मुझसे मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, और मैं ये नहीं समझती कि चंद शराब से बदमस्त आदमियों को काबू में रखने के लिए तुम्हें किसी लश्कर की ज़रूरत है। किले का मुहाफिज कुछ और कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया और यूसिपिया निढाल सी होकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, फस्तानिया ये मामला बहुत ख़तरनाक है। मुझे डर है कि एरज घर जाकर हमारे खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। काश तुम्हारे अब्बा जान आज यहाँ होते। अम्मी अगर अब्बा जान यहाँ होते तो एरज शराब से मदहोश होकर शहर का रुख करने की जुर्रत न करता। मुझे यकीन है कि वो किले के मुहाफिज पर यह एतराज़ नहीं करेंगे कि तुमने एरज और उसके साथियों को रात के वक्त लोगों के घरों में घुसने से क्यों रोका था। फ़र्ज़ कीजिए अगर शहर में कोई सर फिरा एरज को कत्ल कर दे तो किले के मुहाफिज से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने एक बेवकूफ़ इंसान को ख़तरे से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या उससे कबल कई बस्तियों में इस किस्म के वाक़यात पेश नहीं आए? फस्तानिया का जोश बहुत हद तक कम हो चुका था और वह अपनी माँ से ज़्यादा अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। एक साथ परेशानी और इस्तराब की हालत में इंतज़ार करने के बाद उन्हें किले के दरवाजे की तरफ आदमियों का शोर सुनाई दिया और वह उठकर अपने कमरे से बाहर झांकने लगी। एक नौकर भागता हुआ आया और उसने कहा, किले के सिपाही एरज और उसके साथियों को पकड़ कर ले आए हैं। यूसिपिया ने पूछा, शहर में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, सिपाही कहते हैं कि जब हम शहर में दाखिल हुए थे तो ये लोग एक गली से चंद पत्थर खाने के बाद चीखते चिल्लाते वापस आ रहे थे। एरज के एक साथी का सर फटा हुआ है और मेरे ख्याल में वह चंद दिन सफ़र के काबिल नहीं होगा। सेहन में किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी और नौकर ने मुड़कर देखते हुए कहा, शायद किले के मुहाफिज आ रहे हैं। यूसिपिया ने कहा, अच्छा तुम जाओ। नौकर चला गया और किले के मुहाफिज ने दरवाजे के करीब पहुंचकर किसी तमहीद के बगैर कहा, जनाब मैं उन्हें ले आया हूं और मुझे खुशकिस्मती से उनके साथ झगड़ा करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। यूसिपिया ने कहा, हमारा नौकर कहता है कि शहर के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए थे। जी हाँ, और ये उल्टे पांव वापस आ रहे थे। एरज ने हमें देखा तो उसे ये गलतफहमी हुई कि हम उसकी मदद के लिए आए हैं। उसने मुझे किसी ताख़ीर के बगैर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं सिपह सालार के हुक्म के बगैर इस शहर के बाशिंदों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सच पूछिए तो मुझे शहर के बाशिंदों से कतई ये तवक्को न थी कि वह किसी ईरानी पर पत्थर बरसाने की जुर्रत करेंगे, लेकिन कुदरत को शायद मेरी इज़्ज़त रखना मंजूर थी।
میرے خیال میں انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ ڈاکوؤں کی کوئی ٹولی آ گئی ہے۔ ایرج مجھ سے سخت خفا ہے اور اس نے مجھے بہت دھمکیاں دی ہیں، لیکن میں اسے سمجھا بجھا کر واپس لے آیا ہوں۔ اب وہ میری شکایت لے کر آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر روک دیا ہے کہ آپ آرام کر رہی ہیں۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعلی صبح یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ فستانیہ نے کہا امی جان اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کریں گی، اور مجھے یہ بھی امید نہیں کہ شراب کا نشہ اترنے کے بعد وہ ہمارے سامنے آنے کی جرأت کرے گا۔ قلعے کا محافظ ادب سے سر جھکا کر واپس چلا گیا، اور یوسیپیا نے دروازہ بند کرنے کے بعد فستانیہ کا بازو پکڑ کر کہا چلو بیٹی اب آرام کرو۔ فستانیہ کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ دونوں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ یوسیپیا کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئی، لیکن فستانیہ پچھلے پہر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ بالآخر اسے نیند آ گئی۔ اگلے دن وہ بیدار ہوئی تو کمرے کے کھڑکی سے سورج کی شعاعیں آ رہی تھی اور یوسیپیا اس کے بستر کے قریب کھڑی تھی۔ یوسیپیا نے کہا اٹھو بیٹی اب دوپہر ہونے والی ہے۔ فستانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے پوچھا وہ چلا گیا؟ وہ صبح ہوتے ہی چلا گیا تھا اور تمہارا خیال درست تھا، اس نے میرے پاس آنے کی جرأت نہیں کی۔ فستانیہ نے کہا امی عاصم زندہ ہے، میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے۔ یوسیپیا نے قریب بیٹھ کر فستانیہ کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا بیٹی خدا کرے وہ زندہ ہو۔